Next topic is, good morning everyone. Today we are going to study LC oscillations mathematically. As we have seen in previous class that LC L and C combination produces oscillation of energy. All right, so in that particular topic we have seen that energy is transferred periodically from inductor to capacitor and capacitor to again inductor. All right, so if we firstly we will see how we can plot it in graphical form, and then we will come to the mathematics of that particular LC oscillations. All right, so if I say this is the amplitude of oscillations, या कितना एनर्जी ट्रांसफर, देखिए वहां पे तो एनर्जी ट्रांसफर ही था. दिस इज एम्पलीट्यूड. अगर हम एक विजुअलाइज केवल करना चाहें एनर्जी के लिए, तो हम कहते हैं कि एक बार एनर्जी कैपेसिटर में सबसे कम होती है तो उस टाइम में ऑक्सीलेशन इंडक्टर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और जब एनर्जी इंडक्टर से कैपेसिटर में जाती है तो इस तरह से लगातार ऑक्सीलेट करती रहती है एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में. ये एक आइडियल कंडीशन है. एज आई वर टोल्ड यू इन द लास्ट in the end of the video that energy is wasted in the form of heat as well as electromagnetic radiations. So the LC oscillations are usually damped oscillations. इस पर्टिकुलर कंडीशन को जहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, मान लीजिए आइडियल कंडीशन है कि इंडक्टर हमारा प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, मींस रेजिस्टेंस जीरो है इंडक्टर का, और कोई हीट लॉस भी नहीं है, और कह लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉस भी नहीं है, देन सच ऑक्सीलेशंस आर कॉल्ड undamped oscillations. Undamped oscillations. But as we know, there is some loss of energy in the form of heat as well as electromagnetic loss or electromagnetic radiations. So the amplitude of oscillation goes on decreasing and the oscillations finally die out. Similarly, the total energy of this system would not remain constant when resistance were zero also, means resistance of the inductor is also zero, then also energy will lose, and that energy will be lost in the form of radiations. So energy will be radiated away in the form of electromagnetic waves. So that particular graph will be drawn like this. मान लीजिए टाइम है, टाइम के साथ ये एम्पलीट्यूड, then oscillations or the energy will be reduced like this. ये हर बार एम्पलीट्यूड घटता चला जा रहा है. These are called damped oscillations. Such oscillations are called damped oscillations. और ये प्रैक्टिकली ट्रू होता है. अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन एक आइडियल कंडीशन. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट LC oscillations qualitatively. Now come to the mathematical relations. See, as we have seen in LC oscillations, one arrangement is such that one L was there and one capacitor was there. Energy was transferred between these two periodically. If I say current at any instant of time, current is I, here its maximum values are L and C, then
as current is moving from here to here, then this 2 points will behave as minus, plus and minus. This we can say this plate is positively charged and this plate is negatively charged at particular instant of time only, क्योंकि ये लगातार polarity बदलती रहती है. All right, so we will write, suppose a capacitor, this capacitor has capacitance C. Initially I will write initially charge on capacitor is Q naught. ऑल राइट, ये मैक्सिमम चार्ज था कनेक्टेड टू एन इंडक्टर of inductance L. All right, as the circuit is closed, the charge on the capacitor begins to decrease, giving rise to a current in the circuit. As Q decreases, Q means the charge, क्योंकि शुरुआत में तो Q नॉट था Q की वैल्यू, so I will increase, and as the I increases, so we can write I is actually the change in Q. देखिए Q किस में से कम हो रहा है, Q कैपेसिटर से कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया है. ठीक है, as the charge on the capacitor decreases with time, current is increases, so I is equals to minus dq by dt. याद रखिएगा माइनस साइन बहुत भूलता है ये, कि आखिर कहाँ से कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर का चार्ज है जो कम हो रहा है. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ across the inductor at any instant can be written as EMF induced. क्या होता है, फ्रॉम फैराडे लॉ, जब करंट में चेंज हो रहा है. देखिए इंडक्टर में, इंडक्टर से लिंक्ड करंट में बदलाव होगा, क्योंकि करंट धीरे धीरे बढ़ेगी ना टाइम के साथ. जब करंट बढ़ेगी तो करंट से वो जो इंडक्टर से लिंक्ड करंट है, अगर वो चेंज होती है, तो इंडक्टर क्या है, एक सोलेनॉइड है, उससे लिंक जब करंट चेंज होगी तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होगी और एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो ये वही बैक ईएमएफ है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. दिस वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स. So potential difference across the capacitor at that particular instant. मान लीजिए किसी टाइम में हमने क्या माना कि Q चार्ज था और वहाँ पे I था माइनस डी क्यू बाई डी टी. Q चार्ज कहाँ है, कैपेसिटर पे. So we will write at that instant potential difference across capacitor. This is how much, Q चार्ज है ना किसी इंस्टेंट पे और कैपेसिटेंस तो C है, तो Q बाई C हम कह सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हम सारी ही बातें कर रहे हैं. चार्ज Q है कैपेसिटर पे, तो पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई C, और I कितना होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और जो EMF इंड्यूस होगा इंडक्टर पे, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, according to Kirchhoff's voltage law, देखिए
ये है हमारा सर्किट, कहीं रेजिस्टेंस इसमें दिख रहा है? नहीं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेज द potential difference is equals to I multiplied by R, but the R is 0, so I into R will be 0. So total potential difference एक साइड लिखा जाए, potential difference या potential L di by dt एक है across inductor, and capacitor के across कितना है? Q by C है, और ये किसके बराबर होना चाहिए? I multiplied by R. लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, करंट चाहे I हो चाहे कितनी भी हो, दिस विल बी 0. सो दिस टाइम ये हम साइड में लिख भी दे रहे हैं, सिग्मा V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर सिग्मा, ये होता था, तो इसी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है. सो दिस कैन बी रिटन एज L, I है डी आई, यहाँ देखिए I क्या है? माइनस डी क्यू बाई डी टी है ना, तो डी आई कितना हो जाएगा? सिंस I इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, then I is equals to minus dq by dt, then di is equals to minus of, just because it is di by dt is equals to कितना होगा यहाँ पे? d by dt of I, यानी माइनस d2q by dt 2, ये यहाँ पे रख रहे हैं. सो और माइनस यहाँ पे साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d2q by dt 2 और dt स्क्वायर प्लस q बाई सी इज इक्वल्स टू 0. देखिए इसको मैं और क्लियरली लिख लूँ, इट इज d2q बाई dt2, देखिए L लिया, L को कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दिया तो यहाँ एक L आ जाएगा, प्लस q बाई एल सी इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द एक्सप्रेशन. ये अभी तक हमारी एक इक्वेशन है. देखिए इस तरह की इक्वेशन, अभी मैं इसको और ज़्यादा आइडियल फॉर्म में लिख लेता हूँ, d2q बाई dt2 प्लस 1 बाई एल सी q इज इक्वल्स टू 0. एक यहाँ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0. क्या ये इक्वेशन आपने कभी देखी है? 11th क्लास में when we were studying about oscillation of mass using a spring, तब हमने वहाँ पे एक्सप्रेशन देखा था. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है d2x बाई dt2 सेकेंड ऑर्डर की. तो यहाँ पे इसका सॉल्व कैसा होता है, इसका अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे, इसका काफ़ी लंबा सॉल्यूशन है, बट यू नीड ओनली द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जहाँ पे हमको इसका एक्सप्रेशन चाहिए. तो x का सॉल्यूशन होता है जब इस तरीके की कोई इक्वेशन हो, एक कांस्टेंट cos और जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन हो, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैंने इसको ओमेगा माना हुआ है, मैं इसको ओमेगा नॉट कह देता हूँ क्योंकि हम आगे यही यूज़ करेंगे. ओमेगा नॉट ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, t प्लस बी साइन ओमेगा नॉट, जो भी यहाँ एक्सप्रेशन स्क्वायर में हो उसका केवल नंबर ओमेगा नॉट t, एक कॉस ओमेगा नॉट t प्लस बी साइन ओमेगा नॉट t. तो ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये here if omega naught is equals to 1 upon root LC, then we can write this equation as d2q by dt2 plus omega naught square q is equals to 0, and we will write this is a linear differential equation ऑफ सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि पावर 2 है. देन जनरल solution of this will be
इसका जनरल सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा, जो किसके लिए सॉल्व करना है, वेरिएबल क्या है, q है, तो q जो होगा वो किसके बराबर होगा, a cos, यहाँ जो भी स्क्वायर में हो उसी को यहाँ क्वांटिटी सिंपल लिख लो, cos ओमेगा नॉट, और साथ में टाइम के रिस्पेक्ट में है ओमेगा नॉट t प्लस b, दूसरा कोई कांस्टेंट है, ये a और b कांस्टेंट हैं, साइन ओमेगा नॉट t. This will be the general solution. Now we will put initial condition to getting the solution complete. As we know, this can be written as equation 1 as at time 0 t0 पे क्या होता है, at t is equals to 0 क्या था, कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज था, आपको याद हो अगर तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या थी, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट, कैपेसिटर में कितना चार्ज था, Q नॉट चार्ज था, तो ये हमारी पहली इनिशियल कंडीशन हो गई। ऑलराइट, सो यहाँ वैल्यू रख देते हैं t0, तो cos 0 हो जाएगा, ये साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, यहाँ cos 0 केवल बचेगा, तो Q कितने पे, टाइम 0 पे Q कितना हो जाता है, Q नॉट विल बी, Q की जगह Q नॉट रखा और a cos 0 हो गया, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, cos 0 1 होता है ना, तो a इज इक्वल्स टू Q नॉट। ये पहली इनिशियल कंडीशन रखने पे हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मिल गया, कांस्टेंट ऑफ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल गया। अब हम सेकंड वाली कांस्टेंट को निकालना चाहते हैं, b को। सो वन मोर थिंग, एज एट t इज इक्वल्स टू 0 q इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, सो dq बाई dt एक चीज़ निकाल लें हम, dq बाई dt यहाँ से निकाल लें, इसी इक्वेशन को डेरिवेटिव निकाल लें t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला cos ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा t, माइनस ऑफ साइन ओमेगा t, लेकिन ओमेगा नॉट t है, ये केवल t नहीं है, तो ओमेगा नॉट भी साथ में आएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट का डिफरेंशियल अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t, ये हो जाएगा पहले वाले टर्म का। दूसरे वाले टर्म का जब हम डिफरेंशियल करेंगे ये वाले का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ओमेगा नॉट आएगा, लेकिन प्लस में साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा नॉट टी। ये हो गए दो डेरिवेटिव्स, है ना। नाउ सो एट टी इक्वल्स टू 0, देखिए आप देख रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे q नॉट है, q एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो dq बाई dt क्या होगा, 0 होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये तो मैंने अलग से निकाला है, अभी इसको हम यूज़ करेंगे। एट t इक्वल्स टू 0 q नॉट हो गया, तो dq बाई dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि q नॉट कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव 0। अब ये dq बाई dt हम क्या रख दें, 0 रख दें, देन वी विल पुट dq बाई dt एट t0, t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या रखा जाएगा, dq बाई dt की वैल्यू रख दें और t इक्वल्स टू 0 रखते चलें, ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट, t की जगह क्या रखें, 0 प्लस ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट, t की जगह क्या रखें, 0, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि dq बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 क्या है, 0 है। सो दिस विल बी, ये साइन 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, ये वाला केवल बचा रह गया। देखिए यहाँ पे a और b मैंने नहीं लिखा, a भी होना चाहिए और यहाँ पे b भी होना चाहिए, तो यहाँ पे भी a होना चाहिए, यहाँ पे भी b होना चाहिए, तो b जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बचा वो होगा b ओमेगा नॉट, ठीक है, और cos 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेकंड वाला। पहला तो ये पूरा क्वांटिटी ही 0 हो गया, क्योंकि साइन 0 बन गया, ये एंगल है, तो ये क्वांटिटी cos 0 क्या होता है, 1, b ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी हमें एक एक्सप्रेशन में ये मिला कि एक q नॉट है और b 0 है, यानी हमारे कांस्टेंट्स मिल गए। अब ये ऐसा केस में जब कांस्टेंट्स आ जाएं तो हमारी आइडियल इक्वेशन जो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन माना था ये वाला, इसमें a और b की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, हेंस सॉल्यूशन विल बी हाउ मच, q इज इक्वल्स टू a की जगह q नॉट और cos ओमेगा नॉट t रखना है, b की जगह 0 रखोगे तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फाइनल।
जब Q आ गया ये इंस्टेंटेनियस चार्ज आ गया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चार्ज एट दैट पर्टिकुलर कैपेसिटर. सो करंट विल बी I इज इक्वल्स टू dq बाई dt होता है, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, दिस विल बी cos थीटा का होगा माइनस साइन थीटा. लेकिन याद करिए I हमारा क्या था, माइनस dq बाई dt था, ठीक है. ये तो फॉर्मूला होता है dq बाई dt, लेकिन अपने केस में करंट कैपेसिटर में लगातार घट रही है, तो माइनस dq बाई dt कितना आ गया, Q नॉट रहेगा ही, कांस्टेंट क्वांटिटी है. कॉस ओमेगा नॉट टी का होगा माइनस ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी, और अंदर ओमेगा नॉट टी है तो बाहर ओमेगा मल्टीप्लाई भी होगा. सो द एक्सप्रेशन फॉर करंट विल बी I इज इक्वल्स टू आई नॉट, ऑल राइट, और माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी I इक्वल्स टू क्यू नॉट, क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस ओमेगा नॉट भी है, ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी. दिस विल बी दी एक्सप्रेशन फॉर करंट. तो Q और ओमेगा नॉट दोनों आ गया. यहाँ पे अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है, यही ओमेगा नॉट ही हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन है, जिसकी वैल्यू क्या है 1/√LC. दिस इज द ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी, यानी इस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी ऑक्सीलेट करेगी दोनों के बीच में, दोनों कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में. The charge on the plates oscillates simple harmonically. This you will also write. All right. So this is about the mathematical treatment of LC oscillations or the oscillations in equation form. जो भी oscillations है उसको कैसे equation form में शो करेंगे. अब एक और चीज़ है, एनर्जी कंजर्वेशन इसमें फॉलो करता है कि नहीं, इसको हम चेक करें. मान लें कि सबसे पहले कि मान लीजिए कि एनर्जी इसमें कहीं से भी रेडिएट नहीं कर रही, यानी हमने एडिशनल कंडीशन, हमने जो आइडियल ले ली है कि जो इंडक्टर का तार है वो प्योरली नॉन रेजिस्टिव है और जो रेडिएटेड एनर्जी होती है वो भी ज़ीरो है. सो फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑक्सीलेशंस हम इतना मानते हैं कि अगर इफ़ एट एनी इंस्टेंट charge on capacitor is Q, UE कितना हो जाएगा, यानी कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q²/2C. ये होगी इक्वेशन A, है ना. अब इसके बाद ये तो एनर्जी स्टोर्ड, और लेकिन हमने ये नहीं माना कि ये पीक है, हमने ये कहा कि किसी इंस्टेंट पे चार्ज Q है कैपेसिटर में, एंड करंट in the circuit at that instant is I. then जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, हाफ LI². हमने पहले ही देखा था जब हमने इंडक्टर का डेरिवेशन किया था. तो एनर्जी इंडक्टर में इतनी है, कैपेसिटर में इतनी है, तो हमारे हिसाब से टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होना चाहिए, है ना. तो ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है. इफ देयर इज नो लॉस देन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी UE प्लस UB, यही होनी चाहिए, ठीक है. दोनों को जोड़ दो, हाफ Q²/C प्लस हाफ LI². अब देखिए हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें, Q की वैल्यू, I की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की. सो एज Q इज इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, हमने अभी देखा पिछले अपने डेरिवेशन में, एंड I इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट Q नॉट, आप पीछे देख लेना पलट के, साइन ओमेगा नॉट टी. पुटिंग दीज वैल्यू हियर इन इक्वेशन C रख देते हैं, देन वी विल गेट U इज इक्वल्स टू हाफ दोनों में से कॉमन ले ले, यहाँ पे Q²/C, Q की जगह ये Q0² cos² ओमेगा नॉट टी, यहाँ से ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख रहे हैं, और डिवाइडेड बाई C प्लस हाफ, नहीं हाफ तो पहले ही ले चुके हैं, L.
आई स्क्वायर यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशंस हैं दोनों। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है सी, यहाँ से हम क्यू नॉट स्क्वायर दोनों में है, सी भी कॉमन ले लें, क्यू नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें और एक सी कॉमन ले लें, देन वी विल गेट कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस, देखिए सी कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बन गया, एल सी बन गया, एक सी बाहर लिया तो यहाँ सी आ गया, तो ये वैल्यू हो गई एल सी और ये हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। अब आपको याद होगा कि ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, सिंस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC है ना, ओमेगा नॉट स्क्वायर 1/LC के बराबर, तो ये दोनों देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी केवल बचेगा, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस ये दोनों कैंसिल आउट, तो साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी यू। जरा इस पे ध्यान दीजिए, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस और चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, यानी ये पीक वैल्यू है जब एक कैपेसिटर में चार्ज है, यानी ये वो वैल्यू है जो इनिशियल एनर्जी थी, सो इट इज इनिशियल एनर्जी, है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एनर्जी तो ये और ये थी, लेकिन इनिशियल एनर्जी ये थी, और यही होता है कि टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जितनी हमने शुरुआत की थी, तभी हम कहेंगे कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो वी कैन से दैट व्हेन there is no heat and radiation loss, then total energy is conserved in LC oscillations. All right, so this is all about LC oscillations. अब इसमें एक एक्सप्रेशन और है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो प्रैक्टिस द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ LC oscillations at least 2-3 times so that you can solve it easily, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको वही परेशान करेगा। All right, thank you.